Okay, so I hope Yes, I hope that the previous pages are you have understood that what is the drama is about. Drama Yes, sir. क्या है, ठीक है. Well, so yesterday you saw that diamond robbery. It is about yes, sir. diamond robbery. Uh, but there is also misconception. And what is the misconception? We will come to know. And when there is a proverb, don't make two and two four. Matlab, it is a proverb that don't matlab, give your prediction or make any other premonition without knowing the matter. Sometimes we predict something without knowing the matter, and that becomes wrong sometimes. चलो proverb भी हम लोग देखेंगे, of course. Yes. So one more, two, three characters are mentioned in the drama, like yes, Mrs. Wilson. Mrs. Wilson's का जो है बेटा है लैरी. लैरी को 10 साल का सजा हुआ है ना. And why? Because For stealing $10,000 from a yeah, big firm. yes. That was a big crime actually. $10,000. That is not a very small amount. It's a big amount. ठीक है. Okay, so I think today we have to start from here. So here, Mrs. Moore is saying कि इतना रुपए उसने चुराया है, तो कोई भी कंपनी ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि चलो भाई भूल जाओ, फॉरगेट इट माय बॉय, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी बोलेगा कोई फैक्ट्री. उसे तो जेल भेजेगा ऑफ कोर्स. No, they don't do things that way these days. I do feel sorry for Mrs. Wilson. So here you can see that Mrs. Moore is also compassionate. She's saying, yes, I do feel sorry for Mrs. Wilson. उसको बहुत बुरा लगा होगा. Ma Ryan is saying softly, and so do I. So do I का मतलब तुम जैसे मतलब मिसेस मूर जैसे मिसेस विल्सन के लिए सॉरी फील कर रही है, मिसेस मा रायन भी उतना ही फील कर रही है सॉरी, है ना. सो डू आई. इसको इन्वर्जन वर्ड याद, इन्वर्जन सेंटेंस याद रखना, ठीक है. इसमें एक्चुअली ये होना चाहिए था सो आई डू, मतलब आई पहला आना चाहिए था, डू बाद में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है. हमें वर्ब को भी वर्ब को जो है सब्जेक्ट के पहले ला सकते हैं, इसे कहते हैं इन्वर्जन. सो डू आई. नेक्स्ट मिस आगे क्या कह रही है, चलो पढ़ते हैं. अनफोल्डिंग द पेपर. अब पेपर लेके आई थी, आप जानते हो, पता नहीं रात को पेपर लेके क्यों आई है. सो पेपर लेके आई थी और उसे अनफोल्ड कर रही है, खोल रही है पेपर को. वो क्या बोल रही है, let's see what it says about the case in the paper. I didn't have time to read about it. Snap the paper open at the front page as Maran advances to look over her shoulder. Let's. Doesn't Jim work at Vanking warehouse? Okay, there is something very crucial news, very shocking news. ठीक है, और वो न्यूज क्या है अभी बताया नहीं गया है. न्यूज को बस पढ़े हैं, मिसेस मूर ने पढ़ी है उस न्यूज को. और व्हाट शी आस्क्ड डजंट जिम वर्क एट द वैनकिंग वेयरहाउस. सो वैनकिंग वेयरहाउस इज अ फैक्ट्री, ठीक है, और वहां का जो मालिक है वैनकिंग उसका मालिक है. तो there is news regarding that warehouse. क्या न्यूज है? Moran is saying, yes. What is it? Looks at the paper, starts back. Robbed? The warehouse was robbed. Okay, so there was a robbery actually in वैन किंग वेयर हाउस. वैन किंग वेयर हाउस में एक रॉबरी हुआ है, पेपर में छपा है. और जिम जो है, जिम भी उसी वेयर हाउस में नाइट वॉचमैन का जॉब करता है.
So now this is something very shocking to Marianne also. Mrs. here, it says that it was robbed right after the night watchman left this morning. That means right after your gym left. So जो वहां पर रॉबरी हुई थी वो कब हुई थी? जब नाइट वॉचमैन सुबह निकल से आए थे तब वहां रॉबरी हुई थी। तो मतलब जिम वो जगह छोड़ चुका था। तो मोराइन ये मोराइन इज सेइंग माय। तो यहाँ पर माय का मतलब है थैंक गॉड, ओ माय गॉड, इस टाइप का। माय won't Jim be mad because he missed the excitement? But that he wasn't mixed up in it. So यस, जिम जो है वो एक नाइट वॉचमैन है, तो उसका तो बड़ी जिम्मेदारी है कि वो वेयर हाउस का ख्याल रखे। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हुई कि जिम जब वहां नहीं था तब रॉबरी हुआ, तो जिम फंसने का चांस नहीं है। तो ये सोच के मारायन भी थोड़ा रिलैक्स्ड है। मोर फिर क्या बोल रही है एक्साइटेडली, बहुत एक्साइटेड होके बोल रही है, the thieves did not just get the silks stored there, but they did get the famous banking diamond pendant. Okay, so the warehouse, you can see, the warehouse was of silk. You know, सिल्क के जो साड़ी होते हैं बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, एक तरह के फाइबर है सिल्क। आप फाइबर आपने पढ़ा है, सोशल साइंस में पढ़े हो ना, फाइबर। सो सिल्क एक बहुत ही प्रेशियस फाइबर है। उसके जो क्लोथ्स बनते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो उस वेयर हाउस में चोर ने जो है सिल्क चुराने नहीं गया, वो क्या चुराने गया? वैन किंग का जो डायमंड पेंडेंट था वो चुराने गया। तो ऑफ कोर्स दैट इज मोर प्रेशियस, सिल्क से ज्यादा प्रेशियस डायमंड पेंडेंट है। मराइन क्विकली, तुरंत तुरंत, व्हाट वाज इट डूइंग देयर? अब वेयर हाउस में भाई सिल्क रहेगा, लेकिन ये डायमंड पेंडेंट कर रहा था। दैट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मराइन। मिसेस मूर कह रही है कि वहां पर वो पेंडेंट क्यों था, वाई? ठीक है, उसका आंसर ये है, मिसेस मूर कह रही है, मिस्टर वैन किंग हैड ब्रॉट इट डाउन टू हिज ऑफिस इंटेंडिंग टू हैव इट रीसेट and put it in his office safe and forgot about it. Imagine forgetting a diamond heirloom worth a fabulous fortune. पर में दिया गया है एक्चुअली कि डायमंड पेंडेंट जो है वो वेयर हाउस में क्या कर रहा था। तो वैन किंग ने खुद डायमंड पेंडेंट को अपने ऑफिस में रखा था उन्होंने, और रखने के बाद वो भूल गया था। ठीक है, और डायमंड पेंडेंट देखो, कुछ ज्वेलरीज होते हैं जैसे अंगूठी पहनते हैं ना, किस लिए? गुड फॉर्चून के लिए। तो उस डायमंड को वैन किंग ने अपने फॉर्चून के लिए, फैबुलस फॉर्चून के लिए रखे थे वहां पर, और रख के वो भूल भी गए कि वहां कोई डायमंड पेंडेंट रखा है। Moran is saying it was careless of him. Of course भाई, कोई एक डायमंड पेंडेंट इतना महंगा कोई चीज को कोई रख के भूल जाए तो ऑफ कोर्स इट वाज केयरलेसनेस, है ना? ये डायमंड को चुराया कौन? Who has robbed the diamond? Okay, my dear students, you can see in the picture, Moran is holding something. Can you tell me what is it in her hand? Yes, my dear students, see the picture. Sir, is it handkerchief or something else? Yes, handkerchief, of course it is, but something, uh, you know, something crucial is there. She is holding, another thing. चलो कोई बात नहीं, क्या है वो पता चल जाएगा। सो मरायन जो है आप जानते हो, शी वॉज फोल्डिंग द क्लोथ ऑफ जिम के जो कपड़े उसे फोल्ड कर रही थी, और साथ ही साथ बात भी कर रही थी मिसेस मोर से। तो मरायन कह रही है इट वॉज केयरलेस ऑफ हिम, बहुत ही केयरलेस है वो बंदा। होल्ड्स आउट द स्वेटर
shakes it, and as she does so, a crumpled handkerchief dropped from a pocket and falls to the floor. तो जिम का जो स्वेटर है, जब उसे वो फोल्ड कर रही थी तो उस टाइम उसे थोड़ा सा शेक करी। कपड़े को शेक करने से बिफोर फोल्डिंग यू शुड डू। टेस्ट जाती है। करी तो उसके स्वेटर के पॉकेट से एक क्रम्पल्ड क्रम्पल्ड इन द सेंस मुड़ा हुआ एक गिरा फ्लोर पे। अब वो हैंकरचीफ में क्या है? सर हीरा होगा। डायमंड। हाँ, ठीक है। मिसेस मूर, he is offering a big reward for the pendant's recovery, and look, here's a picture of it. My, so students, you need to remember this line, ठीक है? इस लाइन को याद रखो क्योंकि ये एक बहुत लाइन है। ये लाइन में क्या बोला जा रहा है? He is offering a big reward for the pendant's recovery. कौन रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हैं बताओ एक बार जरा। Who is offering the reward? Can you tell me? मिस्टर वैनकिंग। Of course, good, very nice. बाकी लोग क्या भाई सो गए क्या? नो सर। उठो जागो और आंसर दो मुझे। ये रिवॉर्ड कौन दे रहा है? Who is मिस्टर वैनकिंग। वैन किंग। यस, वैन किंग एक रिवॉर्ड देना चाहते हैं किसके ऊपर? अगर कोई उसे वो डायमंड पेंडेंट लाके, ठीक है, डायमंड पेंडेंट के रिकवरी के ऊपर उन्होंने एक अच्छा रिवॉर्ड रखा। एंड लुक, हियर इज अ पिक्चर ऑफ इट, मतलब उस डायमंड का एक पिक्चर भी है उसमें, इस पेपर में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। Bends her head, absorbed, Marianne stoops to pick up the handkerchief and starts to unwrap it as she looks at the paper over Mrs. Moore's shoulder. ठीक, क्या हुआ? सीन को बस इमेजिन करो। मिसेस मोर पेपर पढ़ रही है, पेपर में डायमंड का फोटो दिया हुआ है, और मरायन जो है स्वेटर पे थी जिसमें से क्रम्पल्ड हैंकरचीफ फ्लोर पे गिरा। अब उस हैंकर को उठाने के लिए वो झुकी। स्टूप मतलब झुकना, ठीक है। स्टूप्स जो का मतलब होता है झुकना। वो झुक के उस हैंकरचीफ ले गई तो कुछ मिला, और मरायन इट इज अ ब्यूटी, मतलब वो डायमंड को देख के बोल रही थी इट इज अ ब्यूटी। मिसेस मूर कह रही है सच अ बिग स्टोन ऑन अ लॉन्ग थीन चेन। वो जो डायमंड पेंडेंट था वो एक चेन अटैच था, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखो। Marianne is saying as she slowly draws a glittering jewel from the handkerchief. तो अभी न्यूज़पेपर में दोनों ने देख लिया, क्या देख लिया दोनों ने? वो डायमंड का पेंडेंट, और वो डायमंड पेंडेंट किसी एक थीन चेन के साथ अटैच था। अब मारायन हैंकरचीफ को जब ओपन करी तो उसे क्या मिला? एक ग्लिटरिंग ज्वेल। और ये ज्वेल जो है कोई और नहीं, वो ज्वेल कौन सा ज्वेल है? वही वाला डायमंड। डायमंड पेंडेंट। डायमंड है। वो मिला कहाँ? जिम हैंकरचीफ में। हैंकरचीफ जिनके में। स्वेटर में। अब बताओ क्या किया जाए? मतलब जिम ने एक्चुअली उस डायमंड को चुराया और चुरा के अपने स्वेटर के पॉकेट में रखा। तो गिल्टी की बात हो रहा है, क्या बोलते हो? ये जो चैप्टर का नाम है गिल्टी, क्या गिल्टी की बात हो रही है? व्हाट डू यू से? व्हाट सर? The name of the drama is Guilty. So, is that the guilty of robbing नो सर। jewelry? Robbing the. नो सर। Are you sure? यस सर। Okay, let us इट में see. भी। पता चल जाएगा किस गिल्टी की बात हो रही है। सर वो तो मिस्टर बैंकिंग का था और जो स्ट्रेंजर था उसका था और वो लेकर आया था। Okay, let us know कि ये जो डायमंड है वो जिम के स्वेटर के पॉकेट में कैसे आया। या तो जिम ने चुराया होगा उसको, है ना, या तो गलती से या जानबूझ के किसी ने उसके स्वेटर में रख दिया होगा। कौन सा सही लग रहा है? सर उसको मिला तो उसके जब वो कॉफी पीने उतरा था तो
अच्छा, मतलब पढ़ लिया। ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट लेट अस कैरी ऑन। सो मरायन को मिला एक ज्वेल, ठीक है। वो अभी उस ज्वेल को हाथ में लेके बोल रही है, अ बिग स्टोन ऑन लॉन्ग थिन चेन, looks hurriedly over Mrs. Moore's shoulder again, then back to what she holds in her hand. It is the same, the very same. So I asked you, कि Marian, I know something is there in her hand. Yes, तो उसके हाथ में एक हैंकरचिप था और एक डायमंड पेंडेंट था जो कि वैनकिन का है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ मरायन को लगेगा एक शॉक। मिसेस मूर इज सेइंग, whatever do you mean? Turns her head around just as Marine puts the jewel behind her back. तो न्यूज़पेपर में जो पेंडेंट का फोटो दिया गया था, द इमेज ऑफ द पिक्चर ऑफ द डायमंड, it was exactly the same which Marine got from Jim's handkerchief. So now Mrs. Moore is also surprised. She's saying, whatever do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? Marianne is saying, I mean, yes. I mean, it is the diamond pendant, all right? Mrs. Moore, snappishly. Of course it is. Look at Marianne fixedly. Land sakes, Marianne, but you are jittery tonight. तो ये तो पक्का हो गया कि हाँ, It remains. जिम के पास जो जिम के हैंकरचिप से जो पेंडेंट मिला था, वो पेंडेंट न्यूज़पेपर में जो पेंडेंट है उसके साथ मैच कर गया। ठीक है। अब सस्पेंशन और बढ़ने लगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज टू Marianne especially because he she thought that कि my son is good now, ठीक है। Okay, and Mrs. Moore is increasing the tension of Marianne, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला Marianne, but you are jittery tonight. Jittery मतलब होता है नर्वस, ठीक है। अब Marianne कह रही है jittery me, Mrs. Moore, is it that late? My Michael will be coming home. I will have to go upstairs now and put on his coffee. He does love a good hot cup of it when he gets in. Throws the paper down on the chair and goes to the door. Good night, Marianne. So Mrs. Moore को ये लगा कि ये जो डायमंड का रॉबरी हुआ है, चोरी हुआ है, ये किसने किया है? जिम ने। तो वो भी बहुत घबरा गई। एंड देन व्हाट शी डिड, शी सेड गुड बाय टू Marianne, बस वहां से जाने के लिए एक्चुअली। तो माय माइकल मतलब उनका हस्बैंड, वो कह रही कि माय माइकल विल बी कमिंग होम, आई विल हैव टू गो अपस्टेयर्स एंड नाउ एंड पुट ऑन हिज कॉफी। उनके लिए कॉफी बनाना है, वो हॉट कॉफी बहुत पसंद करते हैं। गुड नाइट Marianne। चलो ठीक है। अब सी, Marianne and Mrs. Moore both are thinking a lot. They are thinking that Jim has stolen the diamond, but it is not so easy to accept. Marianne के लिए भी ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। Marianne is saying, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा एक पैराग्राफ है। हाँ, Marianne एब्सेंटली मतलब अभी वो ज्यादा टेंशन में किस बात से है? उस डायमंड के बाद से। तो इसीलिए उन्होंने Marianne का जो जवाब, गुड नाइट का जो जवाब दिया, वो एब्सेंटली उनके तरफ बिना देखे, ओके ठीक है गुड नाइट, इस तरह के। गुड नाइट। Marianne pounces on the paper and spreading it open looks from the jewel to the paper. So Marianne she wants to be more, क्या बोलना चाहिए, कंफर्म, मतलब वो कंफर्म करना चाह रही थी द ज्वेल विच शी इज होल्डिंग
is the exactly which is printed in the newspaper. ठीक है? It is the same, the very same. But how did it get into Jim's pocket? He did not steal it. ठीक है? मतलब वो अपने आप को ही बोल रही है, he did not steal it. I know he didn't. I call him just to hear his voice. ठीक है? So now you can see that the concern of a mom जो है बहुत ज्यादा होता है एक मॉम को अपने बेटे या बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शी डिड, शी मेड इट कंफर्म दैट द ज्वेल she got from Jim's pocket is the same or not. So finally, when she got that key, of course it is same. Then what she did, she thought herself, वो खुद ही सोची कि नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता है. बाय द वे, मुझे अभी अपने बेटे से बात करना है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनका एक्शन दिया गया है. शी थ्रोज द स्वेटर ओवर द बैक ऑफ द चेयर, nervously wraps the diamond back in the handkerchief and thrust it into her apron pocket as if it burns her, and begins to pace up and down the room, finally goes to the phone on the small table. So what she did, उसने अपने उस डायमंड को वापस हैंडकरचीफ में उसको फोल्ड करके अपने एप्रॉन के पॉकेट में रखा. लेकिन अब डायमंड जो है वो दैट इज वेरी शार्प, तो वो चुभ रहा था उनको. तो फिर वो ठीक है, वो से जैसे जैसे उसको सेट करके वो फोन करने के लिए, किसको, जिम को फोन करने के लिए स्मॉल टेबल के पास आई जहां पर लैंडलाइन का रिसीवर था. ठीक है, देन he was speaking to herself, अपने आप ही बात कर रही थी. He did not steal it. I know he did not. I will call him just to hear his voice. Just to hear his voice मतलब मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बात करके पूछना चाहता हूँ कि क्या उसने चुराया. नेक्स्ट, तो उन्होंने एक फोन नंबर डायल किया. ऑफ कोर्स वैन किंग वेयर हाउस का फोन नंबर था वो. हेलो, वैन किंग्स वेयर हाउस, put me through the put me through to the watchman. Yes, Jim Ryan. Pause. Oh, you are the night watchman? You don't know any Jim Ryan? Thank you. Jim, my Jim. So, जब मा रायन ने फोन लगाया वेयर हाउस में, तो वहां एक बंदा ने फोन उठाया. वन पर्सन पिक द कॉल एंड मा रायन asked that please give the phone to Jim, I want to talk with him. लेकिन सामने से रिप्लाई आया कि नहीं, यहाँ तो कोई जिम नाम से किसी को कोई है नहीं, मुझे नहीं पता. ऐसा उन्होंने कहा कि आई डोंट नो एनी जिम रायन. तो ये तो और ज्यादा मतलब टेंशन वाली बात है, क्योंकि मा रायन को तो पता है कि जिम जो है वो कहाँ काम करता है, वैन किंग वेयर हाउस में. लेकिन अभी वहां से जब बताया गया कि इनको कि वो किसी जिम को नहीं जानते हैं, देन शी बिकेम मोर कंसर्न, टेंस्ड. ठीक है, नेक्स्ट, door at left stage is pushed open and left half open, concealing Marianne as she stands behind it. Two men enter. So जैसे वो फोन रखी, as she put the call back, then two people enter into the room. ठीक है, दो लोग अंदर आए. तो एक उसमें से जिम है और एक स्ट्रेंजर. ओके, हमें पता चलेगा ये स्ट्रेंजर कौन है. हु इज द स्ट्रेंजर, बहुत जल्द पता चलने वाला है. तो जिम अंदर आया गेली, मतलब बहुत खुश होकर. गेली मतलब बहुत ज्यादा खुश होके, हैप्पी होके. उसने कहा, वाह, हियर वी आर स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर कह रहा है, अ कोजी रूम, आर यू श्योर वी वर नॉट फॉलोड. तो स्ट्रेंजर ने जिम को कहा, बहुत ही कोजी मतलब बहुत एकदम प्यारा सा रूम है, कंफर्टेबल रूम है.
रूम के अंदर आने के बाद देन ही आस्क्ड आर यू श्योर वी वर नॉट फॉलोड, मतलब क्या तुम्हें लगता है हमने किसी ने हमको फॉलो नहीं किया? तो जिम ने कहा डोंट वरी नॉट अ सोल सॉ अस। यहाँ पर सोल का मतलब इंसान, नॉट अ सोल सॉ अस, वेट आई विल गेट इट। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो जिम रैन कह रहा है आई विल गेट इट, तो व्हाट इज इट? एनी आइडिया? जिम बोल रहे हैं ना आई विल गेट इट, मैं इसे लेके आता हूं, तो वो क्या लेके आने की बात कर रहे हैं? एनी आइडिया? आई थिंक यू कैन Sir, गेट। that chain, diamond chain. यस, वन रिस्पॉन्स ओनली। हाँ, बाकी लोग कहाँ गए भाई? Yes, sir. Sir, or it can be sweater also. यहाँ पर जिम ने कहा कि डोंट वरी नॉट अ सोल सॉस वेट आई विल गेट इट, तो यहाँ पर इट जो है वो क्या है? उसने कहा कि मैं उसे लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं? चलो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा वो क्या लाने की बात कर रहा है, ठीक है? तो स्ट्रेंजर की एंट्री हो। सर हाँ बेटा। सर स्ट्रेंजर को ही लाता है बोल रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, सर बैंकिंग को तो लाता है वही तो बोल रहा होगा। हाँ चलो, गेजिंग तो अच्छा है। दिव्यांश लुनिया मनी, नहीं बेटा, मनी की बात नहीं हो रहा है। चलो पता चल जाएगा जिम किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो हमें तो ये तो पता चल गया कि भाई डायमंड जो है, वैन किंग का जो डायमंड है वो मिला कहा, जिम के स्वेटर के पॉकेट में एक हैंडकरचीफ में उसे वो रखा था। अब जिम घर आया और जिम के साथ एक स्ट्रेंजर साथ में आया, और एज दे एंटर्ड इन द हाउस स्ट्रेंजर आस्क्ड जिम, जिम को सवाल किया स्ट्रेंजर ने, आर यू श्योर वी वर नॉट फॉलोड, मतलब तुम पक्का हो ना भाई हमको किसी ने फॉलो नहीं किया? तो जिम ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करिए, नॉट अ सोल सॉस, यहाँ पर सोल इन द सेंस पर्सन, कोई भी हमें नहीं देखा है, वी आर नॉट फॉलोड। उसके बाद क्या बोलते हैं कि वेट आई विल गेट इट, मतलब रुकिए मैं लेके आता हूँ, क्या लेके आता हूँ पता चलेगा। सर मूव्स, वो डायमंड रॉबरी। हाँ, moves to chest, begins rummaging around as the man takes some banknotes from his pocket and start to count them. Wait, don't give me the money until you're sure it is the right article. So see, यहाँ पर जिम जो है क्या देखा कि द स्ट्रेंजर जो अपने जेब से बैंक नोट्स मतलब पैसे, ठीक है, कुछ पैसे निकाल के वो गिनना शुरू किए। तब जिम ने कहा वेट सर वेट, डोंट गिव द मनी, सॉरी हाँ, डोंट गिव मी द मनी अंटिल यू आर श्योर इट्स द राइट आर्टिकल। तो मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंजर जिम को पैसे दे रहा था किसी चीज के बदले में। अब वो क्या चीज है आगे जाके बिल्कुल पता चल जाएगा, यू विल कम टू नो व्हाट इज द थिंग, ठीक है? एंड सर डायमंड। देखते हैं क्या है। जिम जो है स्ट्रेंजर को सजेशन दिया कि आप पहले देख लो, श्योर हो लो कि वो वही है, फिर आप मुझे पैसे देना, ठीक है? ओके। Marian comes from behind the door and sternly advances to the center of the stage. Jim startled. Hello, Marian. I didn't know you were around. Say, did you see me? Did you see my sweater? Okay, so yes, तो वो जो I will get it का मतलब था, it का मतलब था वो डायमंड है ना। जिम मम्मी को देख के पूछा कि हेलो मम्मी, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहीं थे। चलिए कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताइए कि आपने मेरा स्वेटर देखा है? अच्छा, ये बात तो जिनको नहीं पता कि डायमंड किसके हाथ लग चुका है, नारायण के हाथ लग चुका है, तो ये बात
जिम को तो नहीं पता, जिम को अभी भी लगता है कि वो डायमंड कहाँ है, स्वेटर के पॉकेट में, है ना। देखो अब आगे क्या होता है। Marian is saying, I call the warehouse tonight. ठीक है, मतलब मारायन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, who is Tim? जिम इज द सन ऑफ मारायन। Tim, sir, Tim. जिम जिम, टीम नहीं है बेटा, JIM। सर यहाँ लिखा है लास्ट सेकंड डायलॉग में। कहाँ पर? Sir, it's Jim is I think it's a misprint. अच्छा, कहीं टीम लिखा है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज जिम। ओके, मारायन जिम को पॉइंट करके, जिम की तरफ देख के मारायन ने कहा कि आई कॉल्ड द वेयर हाउस टुनाइट। तो मतलब मम्मी ये बताना चाह रही है जिम को कि मैंने वेयर हाउस पे कॉल किया था और पता किया कि तुम वहां काम नहीं करते हो। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिंपली कहा आई कॉल द वेयर हाउस टुनाइट, ठीक है, बोल के एक एक्सप्रेशन दी। जिम जो है उसके बातों में ध्यान नहीं दिया उतना। तो जिम एब्सेंटली सीइंग हिज स्वेटर ऑन द चेयर, ही गोज ओवर इट। यस। तो जिम जिम जो है उनकी मम्मी के बातों पे उतना अटेंशन नहीं दिया। जिम का अटेंशन कहाँ है इस वक्त? स्वेटर पे। और क्यों है उसका रीजन है, ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग रीजन। लेकिन जिम को तो ये नहीं पता कि नारायण को लगभग लगभग सब कुछ पता चल गया है। तो दैट्स व्हाई जिम वाज नॉट मच अटेंटिव इन हिज मॉम। एंड जब नारायण ने कहा कि आई कॉल द वेयर हाउस टुनाइट, तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ, फिर आगे? यस, मतलब उसके आगे नारायण अगेन रिपीटिंग, आई सेड आई कॉल द वेयर हाउस टुनाइट। जिम, आई हर्ड यू। अरे मैं सुन लिया हूं, आगे तो बोलो। नारायण, यू वर नॉट देयर। यहाँ पर टीम आ गया तो कोई बात नहीं, ये जिम होगा, ठीक है। तो नारायण बोल रहे हैं कि यू वर नॉट देयर, तुम वहां नहीं थे। तो जिम कह रहा है नो नॉट टुनाइट, तो आज रात मैं वहां नहीं था, ठीक है। तो इसमें जिम सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये बात तो आखिर में पता चल जाएगा। लेकिन अभी कितने लोगों को लग रहा है कि ये जो डायमंड है वो जिम ने चुराया था? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? Sir, I think he stole it. ओके, यशिता, No, पीयूष, sir. No, sir, it doesn't stole it. he did not steal it, okay। Sir, Sir, I'm he not sure stole it. because I have not read this story yet. हाँ, So फिर भी I एक हम परसेप्शन तो कर यूज कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि the stranger is a businessman and he can purchase the diamond, that's why he was counting the banknotes मतलब पैसे। No, sir. He's banking. ओके 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 ओके, अभी सस्पेंस को सस्पेंस बनाए रखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सर एक हाँ, चीज तो कहने दो। यस पीयूष, यू वांट टू से समथिंग? सर पहले पहले बात हुई थी एक बच्चे ने जिसने $10,000 चोरी किया था, तो मेरे को लग रहा है कि इसमें भी यही है जी। अच्छा, दैट इज गुड एजम्पशन। यस, सो लैरी जो है उन्होंने $10,000 चोरी किया था, तो हो सकता है जिम ने भी ऐसा कुछ किया होगा। मतलब अभी तक तो हमको वही लग रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। तो जिम कह रहा है कि नो नॉट टुनाइट, आज रात को मैं नहीं था। मरायन इज सेइंग नॉर एनी नाइट, आई एम अफ्रेड, फॉर द नाइट वॉचमैन सेड ही डिड नॉट नो यू। सो मरायन अपने आप में ही वो उन्होंने सोच लिया था कि जिम उससे झूठ बोल रहा है, ठीक है, जिम वहां काम नहीं करता है। तो जिम ने कहा कि हाँ मम्मी, आज बस आज रात मैं वहां नहीं था। नारायण ने कहा, क्या कहा? नहीं, तुम कभी भी नहीं थे वहां। आई एम अफ्रेड, मैं बहुत डरी हुई हूँ। जिम लुक्स अप फ्रॉम द स्वेटर टू हर, पजल्ड, फॉर द नाइट वॉचमैन सेड ही डिड नॉट नो यू, ठीक है। तो
मरायन जिम को कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, नॉट एनी नाइट, मतलब तुम कभी भी वहां काम नहीं करते हो, और मुझे ये बात पता चल गया, वहां का जो नाइट वॉचमैन है उन्होंने कहा कि ही डिड नॉट नो यू, वो तुमको नहीं जानता है, मतलब तुम वहां काम नहीं करते। ठीक है, तो अब जिम का ध्यान उनके मम्मी के बातों पे बिल्कुल नहीं है, जिम का ध्यान है उस स्वेटर पे जिस पे डायमंड रखा हुआ है। जिम शेकिंग आउट स्वेटर, उस स्वेटर को झाड़ने लगा। से मरायन, डिड यू सी समथिंग, समथिंग आई हैड इन दिस पॉकेट। तो जिम जो है डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि क्या आपने मेरे स्वेटर में डायमंड को देखा। तो जिम ने कहा कि मॉम, मेरे स्वेटर पॉकेट में कुछ मिला क्या आपको। स्ट्रेंजर, आर यू श्योर जिम दैट यू पुट इट देयर, looks suddenly at Marian, who instinctively puts her hand into her pocket. Oh, ho, I see. You have it. तो अब जिम तो बच्चा है, उतना उसका ध्यान नहीं जा रहा है मम्मी पे। ठीक है, तो जो स्ट्रेंजर है वो तो खड़े खड़े देख रहा है। तो माँ रायन जो है अपने हाथ को अपने पॉकेट में रखी थी, तो स्ट्रेंजर को समझ में आ गया था कि एक्चुअली डायमंड कहाँ है, रायन के पॉकेट में, जिनका एप्रॉन पहनी हुई थी उस एप्रॉन के पॉकेट में डायमंड रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बात जिम कुड नॉट नोटिस, जिम कुड नॉट नोटिस दिस थिंग। स्ट्रेंजर को पता चल गया, तो स्ट्रेंजर ने जिम को कहा, आर यू श्योर जिम दैट यू पुट इट देयर। ठीक है, फिर उन्होंने मारायन की तरफ देखा और उन्होंने कहा, ओह ओह आई सी, यू हैव इट। अच्छा, तो आपके पास है। Marian is saying, the diamond is in safe hands. That's where it is going to stay. ठीक है, मारायन कह रही है कि अब डायमंड जो है ना वो भी सुरक्षित हाथ में है और अब वहीं रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब मारायन को ये लगा कि जिम जो है उसने डायमंड को चुराया और उसे बेचने के लिए स्ट्रेंजर को बुलाया है। ठीक है, स्ट्रेंजर ईगरली वो कह रहे हैं कि देन इट इज द रियल डायमंड, मतलब समझ गए स्ट्रेंजर, यस, तो फिर ये तो रियल वाला डायमंड होगा। देखो स्ट्रेंजर बहुत दिमाग वाला है, ही इज वेरी क्लेवर। ठीक है, ही कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स विदाउट सेइंग, मतलब वो बिना कुछ बोले सब कुछ समझ रहा है। ठीक है, जिम कह रहा है, आई एम श्योर इट इज, टर्न्स टू मरायन, कम ऑन मरायन, टेल अस व्हाट यू डिड विथ इट। मरायन इज सेइंग, नेवर, कभी नहीं बोलूंगी मैं कि वो कहाँ है और क्या किया उसके साथ में और क्या करने वाली हूँ। स्ट्रेंजर होल्डिंग आउट द मनी, नॉट इवन फॉर दिस। तो स्ट्रेंजर को लगा कि हो सकता है पैसों के लालच देकर वो डायमंड मरायन से वापस लिया जा सके। देखो यहाँ पर पिक्चर पे कि ये जो स्ट्रेंजर है वो पैसे दिखा रहा है मरायन को और पूछ रहे हैं कि नॉट इवन फॉर दिस। ठीक है, मतलब जिम ने मम्मी को क्या कहा कि मम्मी कम ऑन मरायन, टेल अस व्हाट यू डिड विथ इट, मतलब अपने डायमंड के साथ क्या किया प्लीज बताइए। तो मरायन ने कहा, नेवर, आई विल नेवर से। तो स्ट्रेंजर ने फिर उनको पैसा दिखा के बोला, क्या नॉट इवन फॉर दिस, पैसों के लिए भी नहीं बोलोगे। मरायन ब्रशिंग अवे हिज हैंड एंग्रीली, नॉट इवन फॉर दैट एंड नेदर इज जिम। तो सी एक्चुअली मरायन जो है वो डायमंड को बचाने की कोशिश कर रही है, और डायमंड का जो असली मालिक है, द रियल ओनर ऑफ द डायमंड, शी वांटेड टू गिव द डायमंड टू इट्स रियल ओनर। ठीक है, इसीलिए मरायन ने कहा कि नॉट इवन फॉर दैट एंड नीदर इज जिम, मतलब मैं तो इस पैसों के लिए डायमंड को दूंगी ही नहीं और ना ही जिम देगा। तो यू कैन सी दैट मरायन इज वेरी ऑनेस्ट लेडी। ठीक है, अब जिम आगे क्या कह रहे हैं, बट मरायन यू डोंट अंडरस्टैंड, वी कैंट कीप दैट डायमंड। टर्न्स टू स्ट्रेंजर, मरायन वाज नेवर लाइक दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड हर।
तो यहाँ पर एक कंसेप्शन है, और वो मिसकंसेप्शन क्या है अभी आगे खोलने वाला है, डोंट वरी। तो जिम जो है मरायन को, मतलब अपनी मम्मी को कह रही है कि मरायन यू डोंट अंडरस्टैंड, वी कांट कीप द डायमंड, मतलब हम उस डायमंड को नहीं रख सकते मम्मी, समझा करो। फिर वो जिम स्ट्रेंजर की तरफ देख के बोल रहा है, मरायन वाज नेवर लाइक दिस, पहले ऐसी नहीं थी, आई डोंट अंडरस्टैंड हर, मैं उसे अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो गया। ठीक है। देन heavy footsteps are heard in the hallway and a cherry-faced policeman stands in the open doorway. The startled group looks at him. तो एक पुलिस भी आ गया लगे हाथ, अब तो और डर का माहौल बन गया। अब आगे देखते हैं। तो ये पुलिसमैन कौन है? माइकल। माइकल बोल रहे गुड इवनिंग। जिम भी उनको बोले गुड इवनिंग माइकल। मरायन स्माइल क्रूकेडली। स्माइलिंग क्रूकेडली का मतलब होता है दिखावा वाला हंसी। अभी मरायन तो बहुत टेंशन में है, और वो अपने बेटे को जेल नहीं भेजना चाहती है। ठीक है। और माइकल एक पुलिसमैन है, तो उसको देख के तो और डर लग गया। तो मरायन हंस के मतलब उनको विश किया ताकि पुलिसमैन को कोई किसी भी तरह के डाउट ना हो। ठीक है, कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन द हॉल। ठीक है। तो मरायन भी बोला अ नाइस नाइट माइकल। जिम फिर बोले वांट यू कम इन। बाप रे बाप, जिम माइकल को इनवाइट कर रहा है कि क्या आप अंदर नहीं आओगे। स्टिल एग्जामिनिंग द स्वेटर। माइकल कह रहा है नो नॉट टुनाइट थैंक्स। तो चलो अच्छी बात है, माइकल जो है वो रूम के अंदर नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट, turns and exits. Marian hurries to the door, slams it, and leaning against it, looks at Jim. तो जैसे माइकल निकल गए तुरंत उन्होंने दरवाजा बंद किया, स्लैम्स बंद करना, और उसके बाद उन्होंने जिम को देखा। मरायन अभी जिम को बोल रहे हैं आई थॉट आई कुड बट आई कांट। Seeing Michael in his uniform made me think of the law, made me afraid of you, Jim. You will have to hurry. तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, माइकल को देखने के बाद आफ्टर यू नो seeing Michael, Marian became more tensed. She became more tensed, worried. ठीक है। और उन्होंने कहा कि जिम तुमको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। क्या जल्दी करना पड़ेगा? सर हाँ बेटा। सर टाइम इज ओवर। यस इट इज 12:16 ना। हाँ हाँ हाँ, ओके। Sir, a long time was over. हाँ यस यस यस। Sir, but story is so interesting, so having an interest. बस श्योर श्योर श्योर, अभी तो हमको सस्पेंस पता चलेगा कि ये डायमंड का सस्पेंस क्या है। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कम टू नो डेफिनेटली। Bye, sir. बाय बेटा, बाय।